بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ کی تعمیر کردہ مسجد میں داخلے کا حکم۔ ان کی تعمیر کردہ مسجد اگر کسی مغصوبہ زمین میں ہو یا دوسری مسجد کی مغصوبہ لکڑی سے بنی ہو یا ایسی چیز لگا دی گئی جس کا مالک معین ہو تو اس میں داخل ہونا بالکل جائز نہیں اور نہ ہی جمعے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو یہ امام کے پیچھے نماز پڑھے اور مسجد کے باہر کھڑا ہو، کیونکہ مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور اقتدا بھی منعقد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے مقتدی کو ایسے شخص کی اقتدا کرنا جائز قرار دیا جس نے مغصوبہ زمین میں نماز پڑھی، اگرچہ نمازی مغصوبہ زمین میں ٹھہرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ اگر مسجد ایسے مال سے بنائی ہو جس کے مالک کا پتہ نہیں تو تقویٰ یہ ہے کہ اگر مل سکے تو اسے چھوڑ کر دوسری مسجد میں چلا جائے۔ اگر دوسری مسجد نہ ملے تو جمعہ اور جماعت اس میں ترک نہ کرے، کیونکہ احتمال ہے کہ بنانے والے نے اپنی ذاتی ملک سے بنایا ہو، اگرچہ یہ احتمال بعید ہے۔ اگر اس کا مالک معین نہ ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو مسلمانوں کے مصالح کے لیے بنائی جانے والی چیزوں کا ہے۔ شاہی مسجد اور امام ابن حنبل علیہ رحمہ کا طرز عمل۔ بعض اوقات بڑی مسجد میں ظالم بادشاہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تعمیری کام ہوا ہوتا ہے، تو جو شخص مسجد میں گنجائش ہونے کے باوجود وہاں نماز پڑھے تو تقویٰ میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے عرض کی گئی، آپ کے پاس جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ جانے کی کیا دلیل ہے جبکہ ہم عسکر یعنی بادشاہ کی تعمیر کردہ جگہ میں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میری دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری اور حضرت سیدنا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہما حجاج بن یوسف کے فتنے کے خوف سے جماعت میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور مجھے بھی خلیفہ وقت کی طرف سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے۔ بادشاہ کی طرف سے رنگ سازی اور چوننا مسجد میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں، کیونکہ نماز میں ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا، وہ تو مسجد کی زینت ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ان کی طرف نہ دیکھے۔ جہاں تک چٹائیوں کا تعلق ہے، اگر ان کا کوئی معین مالک ہے تو ان پر بیٹھنا حرام ہے، ورنہ عام مسلمانوں کے مصالح کے لیے صرف کر دینے کے بعد ان پر بیٹھنا جائز ہے، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ ان پر بیٹھنے سے بچے، کیونکہ یہ شبہ کا محل ہے۔ سبیل کا حکم ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور اسے وضو کرنا اور پانی پینا اور اس میں داخل ہونا تقویٰ کی علامت نہیں، مگر جب نماز کے فوت ہو جانے کا خوف ہو تو اس سے وضو کرے، اور یہی حکم مکہ مکرمہ کے راستوں میں بنائے گئے چشموں اور تالابوں کا ہے۔ شاہی سرائے اور مدارس کا حکم۔ سرائے اور مدارس اگر مغصوبہ زمین میں ہو یا اس کی اینٹیں کسی معین جگہ سے لائی گئی ہوں جس کو مالک تک پہنچانا ممکن ہو تو ایسی جگہ داخل ہونے کی رخصت نہیں، اور اگر مالک مشتبہ ہو جائے تو چونکہ وہ ہر جگہ امر خیر کے لیے تیار کی گئی ہے تو وہ لہذا داخل ہونے میں حرج نہیں، لیکن تقویٰ بچنے میں ہے، اور داخل ہونے کی وجہ سے فاسق نہیں ہوگا۔ یہ تعمیرات اگر بادشاہ کے خادمین نے کروائی ہیں تو اس میں زیادہ سخت حکم ہے، کیونکہ ان کو مسلمانوں کے مصالح میں مال خرچ کرنے کا اختیار نہیں، اور اس لیے کہ ان کے اموال میں حرام زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے مصالح کا مال لینا جائز نہیں، یہ صرف بادشاہوں اور ارباب اقتدار کے لیے جائز ہے۔ شارع عام کے بعد مسائل۔ اگر غصب شدہ زمین کو لوگوں کے لیے شارع عام بنا دیا جائے تو اس پر چلنا جائز نہیں، اگر اس کا کوئی مالک معین نہ ہو تو جائز ہے، اگر ممکن ہو تو تقویٰ نہ چلنے میں ہے۔ اگر سڑک مباح ہو اور اس کے اوپر مال غصب سے بنائی گئی چھت ہو تو نیچے سے گزرنا جائز ہے، اور اس چھت کے نیچے اس طرح بیٹھنا بھی جائز ہے کہ چھت کی ضرورت نہ پڑے، جیسے کسی شارع عام پر کسی کام کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر چھت سے گرمی بارش وغیرہ سے بچنے کا فائدہ حاصل کیا تو حرام ہے، کیونکہ چھت اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جو مسجد یا مباح زمین میں داخل ہو جس کی چھت یا دیواریں مال غصب سے بنائی گئی ہوں، تو وہ صرف گزرنے سے دیواروں اور چھت سے فائدہ حاصل کرنے والا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب اسے دیواروں اور چھت سے گرمی یا سردی یا کسی کی آنکھ سے اوجھل رہنے کا فائدہ حاصل ہو تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ حرام سے نفع حاصل کرنا ہوگا۔ غصب کی گئی زمین پر بیٹھنا اس لیے حرام نہیں کہ اس سے جسم مس ہوتا ہے، بلکہ نفع حاصل کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ زمین کا مقصد ہی اس پر بیٹھنا ہے، جبکہ چھت سے مقصود سایہ حاصل کرنا ہوتا ہے، لہذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ باب نمبر 7 مختلف ضروری مسائل کا بیان۔ وہ مسائل جن کے متعلق حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ سے فتاوی لیے گئے،
इस्तफ्ता, सूफिया का खादिम बाजार जाकर खाना जमा करता है या नकदी इकट्ठी करके उससे खाना खरीदता है तो ये खाना किसके लिए जायज़ है? क्या ये खाना सूफिया के लिए खास है या नहीं? फतवा, मैं कहता हूँ कि सूफिया कराम के खाने में तो कोई शक ही नहीं, जबकि दूसरों के लिए उस वक्त जायज़ होगा जब खादिम की रजामंदी से खाएं, लेकिन शुबा होगा। जायज़ होने की वजह यह है कि सूफिया कराम के खादिम को जो मिलता है वो उन्हीं के सबब मिलता है, मगर दिया वो खादिम ही को जाता है, ना कि सूफिया को। जैसे बाल बच्चों वाले शख्स को एयालदारी की वजह से दिया जाता है कि वो उनका कफील है, और जो उसे मिलता है ये उसका मालिक हो जाता है, ना कि बाल बच्चे। लिहाजा वो बाल बच्चों के अलावा भी किसी को खिला सकता है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ खादिम को मिला वो देने वाले की मिल्क से नहीं निकला, और ना ही ये कह सकते हैं कि खादिम उससे कोई चीज़ नहीं खरीद सकता और ना उसमें कोई तसर्रुफ कर सकता है, क्योंकि इस कौल का मतलब ये होगा कि बगैर अल्फाज बोले लेन देन काफ़ी नहीं। हालांकि ये कमज़ोर बात है, और सदक़ात व खैरात के मामले में कोई भी ताती यानी ले लेने और दे देने को नाकाफ़ी नहीं कहता। ये भी नहीं कहा जा सकता कि खादिम को दिया जाने वाला माल उन सूफिया की मिल्क में चला गया जो सवाल के वक्त खानका में मौजूद थे, क्योंकि ये बिल इत्तफाक जायज़ है कि जो शख्स उनके बाद आए खादिम उस खाने में से उसे खिला सकता है। नीज़ अगर सारे या उनमें से कोई सूफी फौत हो जाए तो उसका हिस्सा उसके वारसों को नहीं दिया जाएगा। यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि खादिम को जो कुछ दिया गया वो तसव्वुफ की जहत से है और उसका कोई मुस्तहिक मुतय्यन नहीं, क्योंकि मिल्क का किसी जहत की तरफ मुंतकिल हो जाना इस बात को वाजिब नहीं करता कि चंद अफराद को उसके तसर्रुफ पर मुसल्लत कर दिया जाए, क्योंकि उसमें बेशुमार लोग दाखिल हैं, बल्कि उसमें क़यामत तक पैदा होने वाले भी शामिल हैं, और ऐसे माल में तसर्रुफ अरबाब इक़्तिदार ही कर सकते हैं, और खादिम किसी जख्त से नाइब मुकर्रर नहीं हो सकता। लिहाजा अब ये कहने से कोई रुकावट नहीं कि खादिम उस खाने का मालिक बन जाता है, और अगर वो सूफिया को तसव्वुफ और मुरव्वत की शर्त पूरी करने पर ही खिलाए और पूरी ना करने पर ना खिलाए तो सूफिया भी उसे ये कहकर मना कर सकते हैं कि हमारी कफालत के ज़िम्मन में खाना जमा न करो, यहाँ तक कि लोगों का उसके साथ हुस्न सलूक ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि अयालदार पर उसके बच्चों की वजह से लोग शफकत करते हैं, और बच्चों के फौत होने की सूरत में लोगों की तरफ से वो सलूक ख़त्म हो जाता है। सूफिया के बारे में चंद मसाइल। इस्तफ्ता, जिस माल की वसीयत सूफिया के लिए की गई हो वो किस पर सर्फ करना जायज़ है? फतवा, मैं कहता हूँ कि तसव्वुफ एक बातनी मामला है जिस पर मतला होना मुमकिन नहीं, और ना ही उसकी हकीकत पर कोई हुक्म लगाया जा सकता है, बल्कि कुछ ज़ाहरी अमूर हैं कि अहले उर्फ लफ्ज़ सूफ़ी का इतलाक करने के लिए उन पर एतमाद करते हैं, और कायदा कुलिया ये है कि हर वो शख्स जो इस वस्फ पर हो कि अगर वो सूफिया की खानका में जाए तो उसका वहाँ जाना और उनसे मेलजोल करना उन्हें बुरा ना लगे तो वो उन्हीं के ग्रोह में शुमार होगा। सूफिया की 5 सिफ़ात और उनकी तफसील। बयान करदा कायदा कुलिया की तफसील ये है कि इसमें 5 सिफ़ात का लिहाज रखा जाए। नंबर 1 नेकी व भलाई, नंबर 2 फ़ुकर, नंबर 3 सूफिया की वज़ाकता यानी शक्ल सूरत, नंबर 4 कोई पेशा अख्तियार न करना, और नंबर 5 खानका में सूफिया के साथ मिलजुल कर रहना। इनमें से बाद सिफ़ात ऐसी हैं कि अगर वो ना रहें तो वो सूफ़ी नहीं कहलाएगा, और बाद ऐसी हैं कि अगर वो ना हो तो दूसरी सिफ़ात से उनकी तलाफ़ी हो जाती है और फ़िस्क सूफ़ी कहलाने में रुकावट है, क्योंकि सूफ़ी से मुराद ऐसा नेक आदमी है जो मखसूस सिफ़ात का हामिल हो। तो जिस शख्स में फ़िस्क ज़ाहिर हो वो अगरचे सूफिया का लबादा ओढ़े हुए हो वो उस माल का मुस्तहिक ना होगा जिसकी सूफिया के लिए वसीयत की गई है। इसमें हम सगीरा गुनाहों का एतबार नहीं करते। वाज़ व तदरीस तसव्वुफ के मुनाफी नहीं। जहाँ तक पेशे या कारोबार में मशगूल होने का ताल्लुक है तो ये भी इस्तेहकाक को रोकता है। लिहाजा किसान, आमिल, ताजिर, अपनी दुकान या घर पर कोई चीज़ बनाने वाला और उजरत पर काम करने वाला, ये तमाम लोग उस माल के मुस्तहिक नहीं होंगे जिसकी सूफिया के लिए वसीयत की गई है, और इस सिफ्त की कमी सूफिया से मेलजोल रखने और उनकी किसी शक्ल सूरत बनाने से पूरी नहीं होगी। अलबत्ता किताबत, सलाई और सूफिया के लाइक उन जैसे दीगर काम किए जा सकते हैं। लिहाजा अगर वो इस तरह का काम करे मगर दुकान पर ना हो और ना ही बतौर पेशा व कारोबार के हो तो ये उसके हकदार होने में रुकावट नहीं बनेगा, और बाकी सिफात के होते हुए ये कमी सूफिया के पास रहने से पूरी हो जाएगी। फिर ये कि अगर कोई पेशे पर कादी हो मगर करे नहीं तो ये भी इस्तेकाक से रुकावट नहीं। वाज और तदरीस करना सूफी होने के मुनाफी नहीं, मगर उस शर्त के साथ कि बाकी सिफात यानी सूफियाना लिबास, रहाइश और फ़ुकर मौजूद हो, क्योंकि सूफ़ी कारी, सूफ़ी वाइज, सूफ़ी आलिम या सूफ़ी मदरस कहने में कोई तनाकुज़ नहीं, जबकि सूफ़ी किसान, सूफ़ी ताजिर या सूफ़ी आमिल कहने में तनाकुज़ पाया जाता है। सूफ़ी फ़ुकर और माल। जहाँ तक
फुकर का ताल्लुक है तो अगर इतना ज़्यादा माल मिल गया जिसकी वजह से वो बज़ाहिर मालदारों में शुमार किया जाने लगे, तो इतनी मालदारी होते हुए उसे इस माल में से लेना जायज़ नहीं जिसकी सूफिया के लिए वसीयत की गई हो। और अगर उसके पास माल हो मगर आमदनी से ज़्यादा खर्च हो तो उसका हक बातिल नहीं होगा। यूं ही अगर उसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब नहीं होती तो अब अगरचे उसके अखराजात ना हो फिर भी उसका हक बातिल नहीं होगा। और ये ऐसे अमूर हैं जिनकी दलील सिर्फ उर्फ व आदात हैं। सूफिया के साथ रहना, सूफिया से मेलजोल और उनके साथ रहना वसीयत के माल में हकदार बनने पर असरअंदाज होता है। हाँ, जो उनसे मेलजोल नहीं रखता बल्कि अपने घर या मस्जिद में उनके लिबास में मलबूस रहता हो और उनके अखलाक अपनाए हुए हो तो वो भी उनके हिस्से में शरीक होगा। और उनके साथ मेलजोल ना रखने वाली सिफ्त की कमी दायमी तौर पर उनकी सी वज़ा कता यानी शक्ल सूरत इख्तियार करने से पूरी हो जाएगी। लिहाजा अगर वो उनके लिबास में मलबूस ना हो लेकिन बाकी सिफात से मुत्सिफ हो तो मुस्तहिक नहीं होगा। और अगर वो उनकी शक्ल सूरत पर ना हो मगर सूफिया वाली बाकी सिफात उसमें पाई जाएं तो वो उसी वक्त मुस्तहिक होगा जब खानकाह में सूफिया के साथ रहता हो। लिहाजा उनके ताबे होने के लिहाज से उस पर भी उन्हीं का हुक्म लग जाएगा। बस मेल जोल और लिबास एक दूसरे का नाइब हो सकते हैं और ये इस आलिम का हुक्म है जो उनके लिबास में ना हो। अगर वो खानकाह से बाहर रहता हो तो सूफिया में शुमार नहीं किया जाएगा। और अगर उनके साथ रहाइश पसीर हो और बाकी सिफात का हामिल हो तो उनके ताबे होने की वजह से उसे सूफिया में शुमार करना बैद नहीं है। यहाँ माले वसीयत का मुस्तहिक होने के लिए ये शर्त नहीं कि उसने अपने मशाइख में से किसी से खरका पहना हो। बाकी शराइत के होते हुए उसका ना पाया जाना नुकसानदेह नहीं है। और वो सूफी जो शादीशुदा होने की वजह से कभी खानकाह में रहता हो और कभी अपने घर में, तो वो सूफिया के जुमरे से नहीं निकलेगा। खानकाह वगैरह पर वक्फ माल के मसाइल, जो माल सूफिया की खानकाह और उसमें रहने वालों के लिए वक्फ किया जाता है उसका हुक्म वसीयत वाले माल के हुक्म से वसी है, क्योंकि वक्फ का मायनी है उनके मसाले में खर्च करना। लिहाजा सूफिया का गैर उनके साथ उनकी रजामंदी से उनके दस्तरखान पर एक, दो या जायद मरतबा खा सकता है, क्योंकि खाने वाली अशिया में फराख दिली का मुजाहरा किया जाता है। यहाँ तक कि मुश्तरका गनीमतों में से खाने वाली अशिया एक शख्स को लेना जायज़ है। कव्वाल यानी हल्का जिक्र में सूफिया को अशार सुनाने वाला उस वक्फ की दावत में से उनके साथ खा सकता है, क्योंकि वो उनके लिए रूहानी तरक्की के मसाले में से है। अलबत्ता वो माल कव्वाल पर खर्च करना जायज़ नहीं जिसकी सूफिया के लिए वसीयत की गई हो। इसी तरह वो आमिल, ताजिर, काजी और उलमा जो सूफिया के पास उनकी तवज्जो के हसूल की खातिर हाजिर होते हैं उन्हें भी उनकी रजामंदी से वक्फ शुदा माल से खाना जायज़ है, क्योंकि सूफिया के लिए वक्फ करने वाला इसी तरीके को सामने रखते हुए वक्फ करता है जो सूफिया के उर्फ में जारी है। बस उसमें उर्फ का लिहाज रखा जाएगा और ये इजाज़त हमेशा के लिए नहीं है। लिहाजा जो लोग सूफी नहीं हैं उनके लिए हमेशा उनके साथ रहना और खाना खाना जायज़ नहीं, अगरचे वो राजी हों, क्योंकि वो अपने साथ जमात सूफिया के गैर को शरीक करके वाकिफ की शर्त को तब्दील नहीं कर सकते। आलिम दीन अगर उनका सा लिबास और अखलाक रखता हो तो उनके यहाँ पड़ाव कर सकता है। उसका आलिम होना सूफी होने के मुनाफी नहीं, क्योंकि जिन्हें तसव्वुफ की मार्फत और पहचान हासिल है उनके नज़दीक तसव्वुफ में जहालत शर्त नहीं। और बाज़ जाहिलों की इस बात की तरफ तवज्जो न की जाए कि इल्म हिजाब है, क्योंकि हिजाब तो जहालत है। हमने इस जुमले की तावील किताबुल इल्म में जिक्र कर दी है। मुख्तसर ये कि हिजाब वो इल्म है जो शरीयत में काबिल मज़म्मत है, ना कि वो इल्म जो काबिल तारीफ़ व पसंदीदा है। और हमने वहाँ काबिल तारीफ़ और काबिल मज़म्मत को तफसील के साथ बयान कर दिया है। आलिम दीन अगर सूफियाना लिबास ना पहने और ना ही उनके अखलाक से मुत्सिफ हो तो सूफिया के लिए जायज़ है कि उसे अपने यहाँ ठहरने से मना कर दें। हाँ, अगर वो उसके आने जाने से राज़ी हों तो उनके ताबे होते हुए उनके साथ खाना जायज़ है। और वज़ा कता यानी शक्ल सूरत ना होने की कमी सूफिया की रज़ा से उनके साथ रहने से पूरी हो जाएगी। इन अमूर का पता उर्फ़ व आदत से चलता है। उनमें से कई अमूर एक दूसरे के मुकाबिल हैं जिनके इतराफ़ यानी नफ़ी व इस्बात पोशीदा नहीं और उनके दरमियानी दर्जे मुश्तबा हैं। तो जो शुबा वाले मुकामात से बच गया उसने अपना दीन बचा लिया, जैसा कि हमने शुबात के अबवाब में बयान किया है। तोहफ़ा और रिश्वत में फ़र्क का बयान। इस्तफ्ता, तोहफ़ा और रिश्वत में क्या फ़र्क है? हालांकि दोनों रजामंदी से दिए जाते हैं और किसी मकसद के तहत होते हैं और उनमें से एक हराम है जबकि दूसरा हलाल। फतवा, मैं कहता हूँ कि माल खर्च करने वाला माल को किसी न किसी गर्ज के लिए ही खर्च करता है, लेकिन गर्ज या तो देर से हासिल होती है जैसे सवाब, या जल्दी हासिल हो जाती है। दूसरी सूरत में वो गर्ज या तो माल होती है या किसी खास मकसद के हसूल पर ताउन और फेल होती है।
यहाँ ये गर्ज होती है कि जिसे तोहफा दिया है उसकी मोहब्बत पाने की खातिर उसके दिल में जगह बनाई जाए। इस सूरत में या तो बैना मोहब्बत मकसूद होती है या उस मोहब्बत के जरिए किसी दूसरी गर्ज तक पहुंचना मकसूद होता है। इससे दर्जा ज़ैल 5 इकसाम हासिल हुई। किसी पर माल खर्च करने की 5 इकसाम। पहली किस्म जिसका मकसद आखिरत में सवाब का हसूल हो, यूं कि जिसको हदिया दिया जा रहा है वो या तो मुख्ताज होगा या आलिम होगा या किसी दीनी मनसब पर फाइज होगा या फी नफ्सा साले दीनदार होगा। अगर लेने वाला जानता हो कि उसे मुख्ताज समझ कर दिया गया है तो मुख्ताज ना होने की सूरत में उसको लेना जायज़ नहीं, और जो जानता हो कि उसे निस्बी शराफत व बुजुर्गी की वजह से दिया गया है तो अगर वो नस्ब के दावा में झूठा है तो उसके लिए लेना जायज़ नहीं। अगर किसी को आलिम दीन समझ कर दिया गया तो उसे उस वक़्त लेना जायज़ होगा जबकि देने वाले के एतकाद के मुताबिक इल्म रखता हो। अगर किसी को कामिल इल्म वाला ख्याल करके बनीत सवाब हदिया भेजा गया तो अगर वो कामिल ना हो तो उसे लेना जायज़ नहीं, और जिसे दीनदार और नेक समझ कर कुछ दिया गया अगर तो वो इस दर्जे का बातनी फासिक है कि अगर देने वाले को उसके फिस्क का इल्म हो जाए तो उसे नहीं देगा, तो ऐसी सूरत में उसके लिए लेना जायज़ नहीं। बहुत कम नेक लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके बातनी मामला जाहिर हो जाएं तो लोगों के दिल उनकी तरफ माइल रहें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ही है जो अच्छी तरह पर्दापोशी फरमाता है, और वही है जो मखलूक में से बास को बास का महबूब बना देता है। सल्फ़ सालिहीन की कमाल एहतियात। पहले के परहेजगार लोग खरीदो फरोख्त में ऐसे को वकील बनाते थे जिसके बारे में लोग ना जान सकें कि ये उन परहेजगारों का वकील है, ताकि जिनसे मामला करना है वो चश्मपोशी से काम न लें। उन्हें इस बात का डर होता था कि कहीं ये दीन के उस खाना ना हो, क्योंकि ये बड़ा नाजुक मामला है। नीज तकवा पोशीदा चीज़ है, इल्म नस्ब और फ़ुक्र की तरह जाहिर नहीं है, लिहाजा लेने वाले को मुमकिना हद तक दीन के सबब लेने से बचना चाहिए। इफ्स की शर्त पर हब्बा करना। दूसरी किस्म माल खर्च करने की गर्ज मुअय्यन हो, जैसे कोई फ़कीर खिलत की लालच करते हुए गनी को तोहफा दे। ये इवज़ की शर्त पर हब्बा करना है जिसका हुक्म मख्फी नहीं है, और ये उस वक़्त लेना हलाल होगा जब अक्द की तमाम शराइत पाई जाएं और जिस इव्स की लालच की गई थी वो मिल जाए। जैसा तोहफे का इव्स वैसा उसका हुक्म। तीसरी किस्म किसी फेर मुअय्यन पर आनत मकसूद हो, जैसे वो शख्स जिसको बादशाह से कोई काम है वो बादशाह के वकील या उसके किसी खास कारिंदे या उसे जिसका बादशाह के यहाँ मुकाम मर्तबा है हदिया दे, तो ये इफ्स की शर्त पर तोहफा देना है जो करीने से समझा जा रहा है। लिहाजा इस तोहफे के इफ्स को देखा जाएगा कि अगर वो हराम है, जैसे हराम वजीफा जारी करवाने की कोशिश करना या किसी इंसान पर जुल्म करना वगैरह, तो उसका लेना हराम है। और अगर वो अमल वाजिब हो, जैसे कुदरत रखने वाले पर जुल्म को दूर करना या मुतय्यन गवाही देना, तो अब जुल्म दूर करने वाला और गवाही देने वाला जो कुछ भी लेगा वो हराम है, और वो रिश्वत है जिसके हराम होने में कोई शक नहीं। अगर वो अमल मुबाह हो, वाजिब और हराम ना हो, और उसमें ऐसी मुशक्कत हो कि उस पर उजरत लेना जायज़ हो, तो जो वो अमल के इस तोहफा लेगा वो हलाल है, जबकि हदिया लेने वाला उसकी गर्ज को पूरा कर दे। इसमें तोहफा उजरत के कायम मुकाम ठहरेगा, जैसे कोई कहे कि ये बात फलां तक या बादशाह तक पहुंचा दो, तुम्हें 1 दिनार मिलेगा, और बात पहुंचाने में थकावट और मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े, या ये कहे कि फलां शख्स को मेरी फलां गर्ज में मदद करने के लिए कहो, या मुझे फलां चीज़ इनाम देने का कहो, और इस काम की तकमील के लिए तवील कलाम की ज़रूरत पड़े, तो ये लेना उन कामों की उजरत होगा जैसे वकील काजी के सामने मुकदमात पेश करने की उजरत लेता है। ये हराम नहीं है जबकि किसी हराम के लिए कोशिश ना की जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। लोधी ऑडियो बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।